آپ میری مدد کیوں کر رہی ہیں؟ اس سے آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گی۔ آپ میری مدد نہ کریں۔ وہ سامنے موجود نرس کو دیکھ رہی تھی جو 3 دن کے بعد اس کے چلنے پھرنے میں مدد کر رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے بستر سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی جب نرس نے کہا تھا کہ واپس ان دریدوں کے ہاتھ چڑھنے سے بہتر ہے تم کہیں بھاگ جاؤ۔ اگر کسی کو جانتی ہو تو اس کے پاس چلی جاؤ، لیکن دوبارہ اس پولیس والے کے ہاتھ مت چڑھنا، ورنہ اب وہ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نرس کو یقین تھا وہ لڑکی بے قصور ہے۔ اس کا لہجہ مسلسل کانپ رہا تھا۔ بولتے ہوئے اسے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی وجہ سے کسی بے گناہ کو مصیبت میں پھنستے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیونکہ تم بے قصور ہو، میری بری آنکھیں کسی کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ظلم کی انتہا ہے میری بچی۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں مدد کروں گی تمہاری ہسپتال سے نکلنے میں۔ جہاں ہو سکے وہاں چلی جاؤ، لیکن ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ کیا حالت کرتی ہے ایک پھول سی بچی کی۔ مجھ سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی میری بچی، جتنا جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ وہ حیرت سے انہیں سن رہی تھی۔ آج جب وہ افسر یہاں آئے گا نا، تب تم یوں ہی نیند میں ہونے کا بہانہ کرنا۔ آج رات کو ہی میں تمہیں اس ہسپتال سے نکلنے میں مدد کروں گی۔ ہسپتال سے نکل کر تم جہاں ہو سکے وہاں چلی جاؤ، لیکن ان پولیس والوں سے دور۔ میں کہاں جاؤں؟ اور اگر میں کہیں گئی بھی تو گناہگار ثابت ہو جاؤں گی۔ اگر میں جیل سے بھاگ گئی تو یہ لوگ سوچیں گے میں ہی گناہگار ہوں۔ پھر بھی اپنی بے گناہی کو ثابت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ پوری طرح سے لرزتے ہوئے بولی تھی۔ یہ پولیس والے ہیں میری بچی، یہاں تم خود کو کسی بھی طرح بے گناہ ثابت نہیں کر سکتی۔ تم نہیں کر پاؤ گی، سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ تم کبھی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پاؤ گی۔ ان پولیس والوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ تم گنہگار ہو تو یہ مرتے دم تک تمہیں گنہگار ثابت کریں گے۔ تم کسی بھی حد تک چلی جاؤ، تم بے گناہ ثابت نہیں ہو پاؤ گی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے، یہ ہمارے سسٹم کی حقیقت ہے۔ یہاں گنہگار وہ نہیں جس نے قتل کیا ہے، یہاں گنہگار وہ ہے جو خود کو سچا ثابت نہیں کر پایا۔ اور کون ہے یہاں جو تمہارے لیے لڑے گا؟ کون ہے یہاں جو تمہیں اس جیل کی 4 دیواریوں سے باہر نکالے گا؟ کوئی بھی نہیں میری بچی، کوئی بھی نہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ زندگی تمہارے لیے اور بڑا امتحان بن جائے۔ چلی جاؤ یہاں سے، تم بہت بڑے نقصان کروا چکی ہو۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑا اور کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ حوریں خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا فیصلہ کرے۔ زندگی اسے بہت مشکل مرحلے پر لے آئی تھی جہاں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ یہ اس ہوٹل کے ریسیپشن پر ایک آدمی کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ وہ کھانا کھانے کے بعد اوپر اپنے روم میں جا رہی تھی جب اچانک ہی ریسیپشن پر دھیان گیا جہاں دلریز گردیزی کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ نام بھی اب آگ لگانے لگا تھا۔ رہا نہ گیا، اس نے ریسیپشنسٹ کے پاس جا کر اس کے بارے میں تفصیل جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ ایکسکیوز می، میں مانتی ہوں کہ جو دلریز گردیزی صاحب ہیں پولیٹیشین ہیں، ان کا تعلق کسی علاقے سے ہے، لیکن آپ نے ہوٹل کے ریسیپشن پر ان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے؟ انتظامیہ، پروپرائٹر، یہ سب کچھ کہاں ہے؟ یہاں پر کسی سیاسی شخصیت کا نام لکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے سامنے کھڑے ریسیپشن پر موجود آدمی سے پوچھا تھا جو پروفیشنل انداز میں 2 ہاتھ جوڑ کر بالکل اسٹریٹ کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر آہستہ سے ہاں میں سر ہلاتا پلٹ کر نام دیکھنے لگا۔ میم، یہ علاقہ بھی دلریز صاحب کا ہے، اور جس ہوٹل میں اس وقت آپ کھڑی ہیں اور جہاں آپ رہائش پذیر ہیں، یہ ہوٹل بھی انہی کی ملکیت ہے، بلکہ آس پاس کے جتنے علاقے ہیں سارے انہی کی ملکیت ہیں۔ یوں کہنا بہتر رہے گا کہ کراچی کے اس حصے میں اس وقت جہاں آپ موجود ہیں، یہ سارا علاقہ ہی دلریز گردیزی کی ملکیت میں شامل ہوتا ہے۔ یہاں کے بڑے بڑے ہوٹل سے لے کر ریسٹورنٹ، بڑے بڑے مال، اچھے گھر، ہر جگہ ان کی ملکیت میں شامل ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے رینٹ پر دی ہوئی ہیں، کچھ چیزوں کا نظام ان کی اپنی ہی ٹیم سنبھالتی ہے، اور یہ ہوٹل بھی انہی کا ہی ہے۔ یہ ہوٹل انہی کی ایک ٹیم سنبھال رہی ہے۔ یہ ہوٹل انہوں نے خاص ان لوگوں کے لیے بنوایا ہے جو بہت زیادہ مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے۔ سر نے غریب عوام کے لیے بہت کچھ کر رکھا ہے، ورنہ آپ ہی سوچئے، کراچی جیسے بڑے شہر اور پھر اس خوبصورت علاقے میں آپ کو ایک ہفتے کے لیے ایک کمرہ 10,000 روپے میں مل گیا۔
इसी की बानिस्बत अगर आप बाकी इलाकों की तरफ जाएं तो शायद आपको 50,000 से ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ती। वो इसे देखते हुए बोले जा रहा था, जबकि जिस अंदाज में इसने दिल इसने दिलरेज के कसीदे पढ़ना शुरू किए थे, रानीन का मूड ही खराब हो गया था। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बोलने से बेहतर था तुम बस ये बता देते कि ये होटल दिलरेज का है और दूसरों को गरीब या कम आमदनी होने का ताना मत दिया करो, ये सही चीज़ें नहीं हैं। अगर तुम्हारे दिलरेज करदेसी साहब ने गरीबों के लिए कोई नेक काम कर ही दिया है तो इसे बार बार गिनाने की ज़रूरत नहीं। वो गुस्से से वापस ऊपर की तरफ जाने लगी थी। आज दादू नीचे नहीं आए थे, वो काफ़ी थक चुके थे। हालांकि इसका इरादा आज पिज़्ज़ा खाने का था तो वो अकेली ही आ गई थी। दादू को डिनर करवाकर दवाइयाँ देने के बाद दादू तो अच्छी खासी फुड्डी रुख हो चुके थे। यहाँ इन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, इसीलिए होटल की हदूद के अंदर वो अकेली ही चली जाया करती थी। जब वो पहले दिन यहाँ आए थे तो होटल की सहूलियात के हिसाब से इसे सचमुच में ये रकम बहुत कम महसूस हुई थी, क्योंकि होटल बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड का था और यहाँ हर चीज़ बहुत ही मियारी और आला फराहम की जा रही थी। ऐसे में इस होटल के रेट्स इतने कम होना इसके लिए अपने लिए भी काफ़ी हैरानकिन था, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ दिलरेज करदेसी की बदौलत है। इसे अंदाज़ा तो था कि वो आदमी इतना ज़्यादा अमीर होगा, ये सारा इलाका इसी का था। तो यानी कि ये बात भी हकीकत ही थी कि जिस इलाके में वो और दादू पहले मौजूद थे वो भी इसी का ही रहा होगा। तभी तो इसका वो नौकर इतने ड्रामे कर रहा था। खैर जो भी है, इसे क्या, इसे तो वो आदमी ही जहर लगता था। वो अपनी सोचों में आगे बढ़ते हुए राहदारी से गुजरने लगी तो वहाँ भी इसे राहदारी में बड़े बड़े फोटो फ्रेम्स में इसी आदमी की शक्ल नजर आई थी। वो 2-3 दफ़ा इस रात से गुजर चुकी थी, लेकिन इससे पहले इसने ये सब कुछ महसूस नहीं किया था। हालांकि इस होटल का नाम भी गर्देसी पैलेस था। शायद इससे पहले वो खुद ही अंधी बहरी गूंगी हो चुकी थी, जो इसे ना तो सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई दे रहा था। खैर जो भी था, वो इस होटल में काफ़ी खुश और पुरसुकून थी। कुछ पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन होटल इसे पसंद आया था और वो जब तक यहाँ यहीं रहने वाली थी। जिस जगह वो घूमने आए थे वहाँ तो इसने अपनी सड़ी हुई शक्ल दिखाकर इसका मूड खराब कर ही दिया था, लेकिन अब इनका इरादा इस इलाके में कुछ दिन और घूमने का था। वैसे भी अपने घर वापस जाकर कौन सा इसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी। इस कमीने इंसान की वजह से यूनिवर्सिटी के 2 साल तो इसके बर्बाद हो ही गए थे। और ये बात याद करते हुए इसने गुस्से से सामने वाली तस्वीर को देखा था। फिर अगले ही लम्हे अपने बैग में कुछ ढूंढने लगी। थोड़ी सी मेहनत के बाद इसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल चुकी थी। अपने हाथ में आने वाले मार्कर को देखकर इसने सामने तस्वीर को देखा था। फिर इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। अगले ही लम्हे इसने भरपूर शरारत के साथ इन तस्वीरों को बिगाड़ना शुरू कर दिया था। किसी की आंख के नीचे गहरा काजल लगाया था तो किसी पर इसकी मूंछों को मजीद घना कर दिया था। अच्छी खासी खूबसूरत तस्वीरें लम्हे में अपनी असली हालत खो चुकी थी, लेकिन ये काम करने के बाद जो सुकून रानीन को आया था इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकती थी। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो कमरे में दाखिल हुई थी, जहाँ दादू इसकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर दाखिल होते हुए हैरानगी से इसका चेहरा देखने लगे। वो इसके अंदाज से अंदाज़ा लगा चुके थे कि वह कुछ न कुछ उल्टा सीधा करके आई है। क्या करके आई हो तुम? इसने शैतानी अंदाज में मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ करके आई हो ना तुम? आसान नहीं था इसके मुंह से इसकी गलतियों को निकलवाना। वो अपने कारनामे जल्दी कबूल नहीं करती थी, इसलिए दादू को इसी का अंदाज अपनाना पड़ा था। वो खिलखिला कर हंसी थी। छोटी सी शरारत की है दादू, लेकिन बहुत मज़ा आया है। अगर कोई शिकायत देकर आए तो प्लीज़ संभाल लेना, बहुत सख्त नींद आ रही है मुझे। वो इनसे थोड़े से फासले पर लगे सिंगल बेड पर लेटती अगले ही लम्हे खुद पर कंबल तान चुकी थी, जबकि दादू हैरत से इसे देखने लगे थे। मुझे यकीन है तू कुछ उल्टा सीधा करके आई है। अब फिर शिकायतों का पटारा आ जाएगा। घर भी सुकून से नहीं बैठती, यहाँ पर भी सुकून से नहीं बैठती। वो परेशानी से नफ़ी में सर हिलाते खुद भी सोने की कोशिश करने लगे थे। अचानक से लाइट कैसे चली गई वो समझ ना सका। थोड़ी देर पहले डिनर करके वो रूम में आया था। तानीर अभी तक दूसरे कमरे में अपने बाबा के पास बैठी हुई थी। ना जाने कौन सी बातें थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अरहान से बात करने के लिए यहाँ दूसरे कमरे में आ गया था, जो आज रात के लिए इसे दिया गया था। रूम में अंधेरा हो जाने की वजह से वो कमरे से बाहर निकलने लगा था, जब अचानक ही पीछे से इसे किसी ने अपने घेरे में लिया। नाजुक सा एहसास महसूस करके वो दिलकशी से मुस्कुराया था
ओहो, तो आज मेरी मानव बिल्ली को मुझ पर प्यार आ रहा है। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। वो इसके हाथों को अपने सीने पर महसूस करते हुए थामकर अपने लबों से लगा गया था, जबकि वो इसकी कलाइयों पर चूड़ियां ढूंढने लगा। आज इसने खुद अपनी पसंद से यहाँ आने से पहले इसके हाथों में चूड़ियां पहनाई थी, शायद इसने निकाल दी थी। चूड़ियां उतारती, इतना खूबसूरत लग रहा था तुम्हारा हाथ। वो दोबारा से इसके हाथ को चूमते हुए बोला, जबकि बाहर से दानिर की आवाज सुनाई दी, दुलकर आप रूम के अंदर हैं, मैं अंदर आ रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है अंधेरे में। अपने मोबाइल की लाइट ऑन कीजिए ना। वो अंदर की तरफ आते हुए दरवाजे पर रुककर बोली थी, जबकि दुलकर अगले ही लम्हे पूरी शिद्दत से अपने सीने पर मौजूद हाथ को झटक चुका था। इसने तेजी से अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए कमरे में लाइट ऑन की थी, लेकिन अपने पीछे किसी का वजूद नहीं था। वो हैरानगी से हर तरफ देख रहा था जब दानिर कमरे में दाखिल हो गई। ओहो, मैंने कहा दरवाजे की तरफ लाइट कीजिए। अचानक से पता नहीं लाइट कैसे बंद हो गई, और आपको पता है यूपीएस रिचार्ज नहीं है। पूरा घर अंधेरे में डूब गया है। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। वो अंदर दाखिल होते हुए इसके बेहद पास आ गई थी, जबकि वो हैरानगी से इसका चेहरा देखने लगा। वो सोच भी कैसे सकता था कि दानिर इसे यूं पीछे से आकर अपने हिसार में लेगी। वो शर्मीली सी लड़की तो उसकी जरा सी हरकत पर शर्मा कर इसके सीने में छुपने लगती थी। वो इससे इस तरह की बेबाकी की उम्मीद कैसे कर सकता था। इसने अपनी थोड़ी देर पहले वाली पेशकश को सोचते हुए दानिर का हाथ थामा था, जो खूबसूरत चूड़ियों से सजा हुआ था। ये क्या ये बेबाक और फजूल सी हरकत अर्शिया कर सकती है? वो आहिस्तगी से इसका हाथ थामकर बाहर की तरफ निकलने लगा। जब अर्शिया हाथ में टॉर्च लिए अंदर दाखिल हुई, बाबा ने बुलाया है बिजली वाले को, वो थोड़ी देर में आता होगा। तब तक अगर इस कमरे में रहना है तो ये टार्च जला लो, कम से कम कमरे में रोशनी तो होगी ना। मैं बाबा के कमरे में टार्च रख कर आती हूँ। अर्शिया तेजी से वहीं टेबल पर टार्च रखती बाहर निकल गई थी, जबकि इसके अंदाज से ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि थोड़ी देर पहले की जाने वाली हरकत अर्शिया ने की है, क्योंकि अर्शिया के हाथ में एक ब्रेसलेट मौजूद था, बल्कि इसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जो दुलकर के नाम का था। लेकिन इसके पीछे जो लड़की खड़ी थी, इसने कोई ब्रेसलेट नहीं पहन रखा था। क्या हुआ? अब ऐसे क्या देख रहे हैं बाहर अंधेरे में? वो इसका हाथ थामे हुए बोल रही थी। शायद इसे अंधेरे से खौफ आ रहा था, इसीलिए इसके करीब करीब रह रही थी। दुलकर इसे देखता हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके गिर्द अपना हिसार बना गया था। कुछ नहीं देख रहा मैं। वैसे तुम्हारे घर में कोई जिन चुड़ैल भूत वगैरह का साया है क्या? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके गिर्द अपना हिसार बनाता इसे अपने करीब कर गया था। जी, ये अब आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे तो कुछ भी नहीं है हमारे घर में। वो परेशानी से इसके सीने पर हाथ रखकर आगे पीछे खौफ से देखने लगी थी, जबकि इसके अंदाज पर दुलकर कहका मारकर हंसता इसके गिर्द अपना हिसार बनाते हुए इसे अपने सीने में छुपा गया था। जो भी था वो खुद ही पता लगा लेगा। इसे अपनी बीवी को डराने की जरूरत हरगिज नहीं थी। इतने दिनों से वो मसलसल अस्पताल के चक्कर लगा रहा था। सुबह शाम वो आता था। क्यों आता था वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक इस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पहले इसका जिंदा बचना ही मुश्किल था, लेकिन अब अगर बच गई थी तो ठीक से होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर के मुताबिक इसका जहन भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था। वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं आ पा रही थी। इसके नज़दीक ये सब कुछ ड्रामे थे। ये लड़कियां इस तरह के ड्रामे करके ही ऐसी मुसीबतों से बचती थी, लेकिन अज़न इन सब चीज़ों से बहुत पहले से निकल चुका था। ऐसे मुजरमों को वो ठीक करना बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आज इसका इरादा इस लड़की के होश में आते ही इससे बात करने का था। बस बहुत हो चुका था ये सब कुछ, इसकी बर्दाश्त से बाहर था। 1 हफ्ता हो चुका था इसे यूं हॉस्पिटल में पड़े हुए, और वो इतना वक्त इस केस पर बर्बाद नहीं कर सकता था। दूसरी लड़की जिस पर इन लोगों को शक था वो साफ बेगुनाह साबित हो चुकी थी। इसके माँ बाप भी निकल आए थे, और बहुत सारी मज़ीद डिटेल्स भी इस लड़की के बारे में सामने आ चुकी थी। इसने बहुत गहराई से जांच की थी, लेकिन इसके खिलाफ इसे कोई सबूत ना मिला था। इसीलिए इसे इसके हाल पर छोड़कर वो दोबारा हुडे की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो होश में नहीं आ रही थी। सर, वो होश में नहीं है तो हम इसे होश में कैसे लाएं? आपको बताया तो है कि फिलहाल वो नॉर्मल नहीं हुई है। कुछ नॉर्मल होती है तो हम आपको बुला लेंगे। डॉक्टर इसे देखते हुए बोली थी। हुडे को नींद के इंजेक्शंस दिए गए थे, जिसकी वजह से फिलहाल वो बेहोश थी। नहीं, मैं इंतज़ार करूंगा
जब इस लड़की को होश आएगा मुझे इससे बात करनी है, इसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। वो न जाने क्या सोचकर वहीं बैठ गया था, जबकि डॉक्टर इसे इसके हाल पर छोड़ती अपने काम में मसरूफ हो गई। दरवाजे पर शदीद किस्म की दस्तक ने दादू को दरवाजे की तरफ मतवज्जो कर दिया था। वो अपनी व्हीलचेयर घसीटते हुए दरवाजे के पास आते हुए दरवाज़ा खोलने लगे, क्योंकि इनकी लाडली पोती अभी तक गहरी नींद में सो रही थी। इनका इरादा इसके जागने के बाद कहीं घूमने जाने का था, लेकिन आज इसकी नींदें ही पूरी नहीं हो रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए इसने बाहर खड़े एक स्टाफ मेंबर को देखा था। वी आर रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन देखें आपकी पोती ने क्या किया है। वो स्टाफ मेंबर परेशानी से इन्हें देखते हुए बोली, तो उन्होंने व्हीलचेयर का बटन प्रेस करते हुए बाहर का रुख किया था। सामने लगी बड़ी बड़ी तस्वीरों की हालत बिगड़ी हुई थी। हालांकि जो भी नक्श निगारी की गई थी वो फ्रेम के शीशे पर ही की गई थी, लेकिन फिर भी ये एक इंतहाई बुरी हरकत थी। और जिस अंदाज में वो रात में मुस्कुरा रही थी वह इससे कोई अच्छी उम्मीद रखते भी नहीं थे। क्या हो गया दादू, सब खैरियत तो है ना? वो अचानक ही किसी की मौजूदगी महसूस करते हुए दरवाजे तक आई थी। दादू कब से इसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें नाकाम होने के बाद वो इसके जागने के मुंतजर थे, लेकिन अब इन्हें बाहर निकलते देखकर वो फौरन ही बिस्तर छोड़कर इनके पास आ गई थी। मैम, आपने ये सब कुछ किया है और ये एक इंतहाई बद इखलाक हरकत है। देखें तो ज़रा, आपने सारी तस्वीरें बिगाड़ दी हैं। सर की नई तस्वीरें यहाँ लगाई गई थी। वो जल्द ही इस होटल को विजिट करने वाले हैं। ऐसे में अगर आज ही इनका यहाँ आना हो गया तो हम इन्हें क्या शक्ल दिखाएंगे? वो होटल के मालिक हैं। आपको इस तरह की नाज़ेबा हरकत नहीं करनी चाहिए थी। कोई बच्चा इन तस्वीरों तक ना पहुँच सके, इसलिए ये तस्वीरें हमने इतनी ज़्यादा ऊंचाई और फासले पर लगाई हैं। लेकिन आप तो बच्चों से भी ज़्यादा बुरी हरकत कर दी है। स्टाफ के मेंबर थोड़ा अदब और एहतराम के साथ अपना गुस्सा जाहिर करने लगी थी। एक मिनट, आपके पास क्या सबूत है कि ये सब कुछ मैंने किया है? हम पर यूं ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं आप। पहले जाकर जानिए तो सही कि ये किसने किया है। मुझे क्या ज़रूरत है आपके सर की शक्ल बिगाड़ने की? इनकी शक्ल तो पहले ही बिगड़ी हुई है। मेरा मतलब है मुझे ज़रूरत नहीं इस तरह की हरकत करने की। मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैम, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर है। आपको किसी भी तरह का कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं। वो अभी बहुत कुछ कहने वाली थी, बल्कि इसका इरादा साफ इनकार करने का था, लेकिन स्टाफ मेंबर की ये बात सुनकर वो अपनी जुबान पर ताला लगाते दादू की तरफ देखने लगी, जो इसे घूर रहे थे। मैं बोर हो रही थी, कुछ था ही नहीं करने के लिए तो ये कर दिया। अब ऐसा भी कुछ बुरा नहीं कर दिया मैंने जिस पर आप मुझे इस तरह से डांट रहे हैं। ये छोटी मोटी हरकतें तो बच्चे करते ही रहते हैं, और जहाँ तक इनको साफ करने की बात है तो गीले कपड़े से साफ करें, फौरन से साफ हो जाएगा। या रहने दीजिए, ये आपके होटल में आपके मालिक को कुछ स्पेशल देखकर हो सकता है कि आपके होटल को बाकी होटल से ज़्यादा पसंद कर लें। वैसे ईमानदारी से बताइएगा, ऐसे ज़्यादा प्यारे नहीं लग रहे? इतनी खरूस तस्वीरें थी, मैंने तो कूल बना दी ये तस्वीरें। इसने सामने खड़े स्टाफ मेंबर को देखते हुए कहा, जो बस इसे घूरे जा रही थी। बहुत अजीब हैं आप मैम, अपनी गलती मानने के बजाय हमें उल्टे मशवरे दे रही हैं। प्लीज़ आइंदा ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा। आपकी इस हरकत की वजह से आज हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती। मैं आपसे माजरत करता हूँ, मेरी पोती ज़रा शरारती सी बच्ची है, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं सॉरी कर रहा हूँ। दादू ने बात ख़त्म करने की कोशिश की तो इसने दादू को घूरा था, जो बात बात पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। इतनी भी कोई कयामत नहीं आ गई थी, सिर्फ तस्वीरों को और खूबसूरत ही तो बनाया था। इट्स ओके सर, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना की जाए, वरना हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज़ मी, क्या एक्शन लेंगे? हम मुफ्त में नहीं रह रहे, यहाँ पर पैसे दे रहे हैं। वैसे तो मैंने कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनके फ्रेम पर हैंड क्राफ्ट करके मैंने कोई गलती कर दी है तो ये लीजिए कपड़ा और पानी के पैसे, लगा दीजिए इनके फ्रेम पर और साफ़ कर दीजिए इनके फ्रेम्स को, या फिर अगर आपको मुश्किल लगता है तो मैं ही करके दे देती हूँ। वो गुस्से से बोली तो स्टाफ मेंबर इसे घूरते हुई नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से निकल गई थी। बदतमीज़ लड़की, हर किसी के सामने हाथ ना जोड़कर खड़े हो जाया करे आप। चले अंदर, बहुत बिगड़ गए हैं। वो दादू की व्हील चेयर को पीछे घसीटते हुए इन्हें अंदर लेकर जाने लगी थी, बिल्कुल इस तरह।
بالکل اسی طرح جیسے کوئی روٹا ہوا بچہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا ارادہ دادو کے ساتھ ان ہوٹل والوں سے روٹ کر بیٹھنے کا تھا۔ وہ انسپکٹر یہاں باہر ہے، یہ سوچ کر ہی وہ بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی، جبکہ وہ نرس اسے یہاں سے بھگانے کی پوری پلاننگ کر چکی تھی۔ آج ہی اس نے نیند کی گولی نہیں لی تھی۔ نرس نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اسے انجیکشن لگا چکی ہے تاکہ وہ ہسپتال سے بھاگ سکے، لیکن آج ہی حسن یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا وہ یہاں سے کیسے نکلے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ یہاں سے نکلنا آسان نہیں تھا، خاص کر کبیر جیسے چلاک بندے کو چکما دے کر نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، لیکن آج وہ یہاں سے بھاگنے کی پلاننگ کر چکی تھی۔ نرس اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ اسے سہارا دیتے ہوئے وہ باہر لے کر آئی تو کبیر کو راہداری میں بینچ پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ کسی ایک نقطے پر نظر جمائے نہ جانے کیا سوچنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بری طرح سے کانپی تو نرس اسے تھام کر واپس کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ یہاں باہر، وہ بری طرح سے ہانپتی ہوئی نرس کو بتانے لگی، جبکہ نرس اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اس راستے میں تم دوسرے راستے سے نکلو گی۔ اس نے کمرے کے اندر ہی موجود دوسری راہداری سے نکلتے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا جو اندر سے بند تھا۔ مت گھبراؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے سارے کیمراز بھی بند کروا دیے ہیں۔ آج تم یہاں سے آسانی سے نکل جاؤ گی، ورنہ بعد میں یہ اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے راستے پر لوگ پیسے بھی بہت کم ہوتے ہیں، تمہارے لیے وہاں سے نکلنا آسان رہے گا۔ وہ اسے نرمی سے تھامتے ہوئے دوسرے دروازے کی طرف لے کر جانے لگی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ بھاگنے کا پلان کامیاب ہوگا بھی یا نہیں، یا وہ بری طرح سے پھنس جائے گی۔ ہورے آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرتی راہداری سے گزر رہی تھی، جبکہ نرس پیچھے کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو اب بھی برقرار تھے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی شکر ادا کرنے والے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکلنے لگی تھی، جب نرس نے اپنے ہاتھ میں موجود فون نکالتے ہوئے اپنے کان سے لگایا تھا۔ ہاں، لڑکی ہسپتال سے باہر نکل گئی ہے، تھوڑا سا آگے جائے تو اٹھا لینا، بہت مہنگی بکنے والی ہے، بالکل ان ٹچ پیس ہے، کافی بہتر حالت میں ہے، کم سے کم 5 لاکھ مانگنا، بڑی مشکل سے بھیج رہی ہوں اسے، یہاں پر پولیس والوں کی حراست میں تھی، بہت مشکل سے نکالا ہے اسے یہاں سے، ساری پولیس نفری اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اب بھی انسپکٹر باہر بیٹھا ہے، اس کے چکر میں کوئی غلطی مت کرنا، میں نے ہر چیز پتہ لگا لی ہے، اس لڑکی کا نکاح ہو رہا تھا، اسے وہ منظور نہیں تھا تو گھر سے بھاگ کر یہاں آئی ہے، کوئی لفڑا نہیں، کوئی چکر نہیں، صاف ستھری لڑکی ہے، میں نے ہسپتال سے بڑی مشکل سے نکالی ہے، اب تم کوئی غلطی مت کرنا، مجھے اس کا پورا پیسہ چاہیے، بس تھوڑے بہت علاج کی ضرورت ہے، 1-2 سال تک تو کام چلا لے گی یہ، تقریباً 2 ہفتے میں علاج کروانا پڑے گا، تقریباً 1-1.5 ہفتے علاج کروانا پڑے گا، خدمتیں کرو اس کی، پھر جب بکے گی تو ان ٹچ لڑکی ہی ہے، پہلی ہی رات میں 5 سے 7 لاکھ دے جائے گی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ، کوئی نہیں ہے آگے پیچھے پوچھنے والا اس کو، وہ فون پر کہتے ہوئے خاموشی سے اسی راہداری سے گزرتی آگے بڑھ چکی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر روشانے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سالگرہ بہت بہت مبارک ہو میری جان، میرے جگر کا ٹکڑا۔ آویہ سوئی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی تھی اچانک کمرے میں ہوتے شور کو سن کر۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے فوراً ہی سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے اپنے سر پر دوپٹہ لیا تھا، جبکہ روشانے تھوڑی نیند میں اپنے والدین سے سالگرہ کی مبارکباد لے رہی تھی، باری باری اس سے سب مل رہے تھے۔ شان نیند سے بڑی آنکھوں کے ساتھ اس کے ساتھ آ کر چپکا تو اس نے پوری شدت سے اس کی گالوں پر کس کیا تھا، جس سے نہ صرف اس کی نیند بھاگی تھی بلکہ اس نے منہ بسورنے اور روٹنے کی پوری اداکاری کر ڈالی تھی۔ بابا، میں اسی وجہ سے اس کو حق نہیں کرتا، یہ مجھے زور سے کس کرتی ہے، منہ بناتے ہوئے بولا تو سلطان کھل کر مسکرایا تھا، جبکہ آویہ سے گلے ملنے کے بعد وہ دوبارہ سے سلطان کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ ارے ایک ہی تو دن ملتا ہے تمہیں پیار کرنے کا، ہر وقت منہ پر پارا بچا کر رکھتے ہو تم۔ بابا، یہ میرا سب سے بیسٹ برتھ ڈے ہے، بیسٹ والا برتھ ڈے، میرے سارے پیارے پیارے لوگ میرے پاس ہیں جن سے میں پیار کرتی ہوں،
जिनके साथ मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। अल्लाह पाक मेरी ये दुआ है कि ये लोग मुझसे कभी जुदा ना हो, हमेशा मेरे पास रहें। वो सुल्तान के सीने से लगती जज्बाती अंदाज में बोल रही थी, जबकि इसकी बात को सुनते हुए मुस्कुराते हुए सुल्तान ने इसके माथे पर लब रखे थे। ओहो पापा को प्यार बाद में कर लेना, पहले केक काटो। तुम्हारे केक के चक्कर में अभी तक सोया नहीं हूँ, नींद आ रही है। शान ने इसे खींचते हुए इसका ध्यान केक की तरफ दिलाया था, जो कब से बेड पर जिन्नीश ने लाकर रखा था। हाँ हाँ मोटू, काट रही हो केक, मुझे पहले ही पता है तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, केक खाने के लिए ही अभी तक जाग रहे हो। वो इसके गाल खींचते हुए जल्दी से केक काटने लगी थी, जबकि सब ने गुनगुनाते हुए केक काटने में इसका साथ दिया था। जबकि इस सब के दरमियान ना तो सुल्तान ने आविया की तरफ देखा था और ना ही इस पर ज़्यादा ध्यान दिया था। ये इसकी बेटी का स्पेशल दिन था, जिसमें सारी अटेंशन की हकदार सिर्फ और सिर्फ इसकी बेटी थी। बाबा मेरी बर्थडे है ना, तो देखो मेरी फ्रेंड मेरे घर पर रहने के लिए आई है। 8 दिन के बाद इसका बर्थडे है, तो फिर मैं इसके घर पर रहने के लिए जाऊंगी। वो सुल्तान को केक खिलाते हुए अपनी फरमाइश नोट करवा रही थी। सोने से पहले इन दोनों में यही तो बहस हुई थी। अब आविया इसको कह रही थी कि अगर वो इसके घर में रात को रुकने के लिए आ सकती है तो रोशाने को भी आना होगा, क्योंकि 8 दिन के बाद इसकी सालगिरह थी। इसकी सालगिरह पर कोई बहुत बड़ी पार्टी तो नहीं की जाती थी, हाँ लेकिन छोटी सी फैमिली पार्टी होती थी। और अगर वो इसकी फैमिली पार्टी का हिस्सा बन सकती थी तो रोशाने को भी इसने अपनी फैमिली पार्टी का हिस्सा बनाना था। जिस पर रोशाने ने कहा था कि वो इजाज़त मांगेगी अपने बाबा से और इनको मना भी लेगी। शानी बेटा, तुम कभी घर से बाहर नहीं रही हो, और कोई बात नहीं जरनीश, अगर शानी कभी घर से बाहर नहीं रही तो आविया भी तो पहली बार यहाँ रहने के लिए आई है ना। अगर आविया आ सकती है तो रोशानी क्यों नहीं जा सकती। 8 दिन के बाद आविया की सालगिरह है और रोशानी इसकी सालगिरह पर ज़रूर जाएगी और रात को भी वहीं पर रुकेगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो परसकून से अंदाज में बोला तो रोशानी पहले तो अपने बाप की बात पर यकीन नहीं कर पाई थी, फिर अगले ही लम्हे खुशी से नारा लगाते फिर से इसके सीने में छुप गई थी, जबकि वो इसकी हरकतों पर मुस्कुराते हुए इसका माथा चूमता एक गैर इरादी सी निगाह आविया पर डाल गया था, जो खुद भी बहुत खुश थी ये जान करके कि इसकी सालगिरह पर रोशाने इसके घर पर रहने आने वाली है। रोशाने ने बहुत इंजॉय करवाया था, यहाँ तक कि सोने से पहले वो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे थे। आविया ने अभी सोच लिया था कि जब रोशाने इसके घर पर रहने के लिए आएगी तब वो भी इसके साथ वक्त गुजारेगी, इसके साथ मूवी देखेगी और वो सारी रात नहीं सोएंगे, खूब बातें करेंगी। आज तो न जाने कैसे नींद आ गई थी, लेकिन अपनी सालगिरह पर ना तो खुद सोने वाली थी और ना ही रोशाने को सोने देने वाली थी। बहुत मज़ा आने वाला था इस दिन, जिस तरह आज बहुत मज़ा आया था। हाँ, इसे रोशाने के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। रोशाने इसकी बेस्ट फ्रेंड से भी अजीज़ होती जा रही थी, जबकि रोशाने भी हर वक्त इसे अपने साथ चिपकाए रखती थी। इन दोनों की उम्र में सिर्फ 8 दिन का फ़र्क था, जो एक बहुत ही मज़ेदार सा फ़र्क था। थोड़ी देर के बाद सुल्तान और जरनीश शान को लेकर अपने कमरे में जा चुके थे, जबकि इन दोनों की मस्तियाँ एक दफ़ा फिर से शुरू हो चुकी थी। हालांकि रोशाने ने कहा भी था कि जल्दी सो जाना, सुबह पार्टी है, लेकिन इस बात का रोशाने ने कोई असर नहीं लिया था और ना ही आविया को लेने दिया था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हसीन। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दुल्हन बनकर कोई इतना हसीन लग सकता है। अल्लाह पाक आपको नजरे बद से बचाए। पार्लर वाली इसे मुकम्मल तैयार करने के बाद इसे आईने के सामने इसका रूप दिखा रही थी। खुद दिलम भी खुद को देखकर हैरान रह गई थी। इसे ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो है। वो तो सर से पैर तक बदल चुकी थी। इसे क्या तैयार किया गया था। इस लड़की ने इससे इसका अपना रूप ही बदल चुका था। वो कहीं से भी दिलम नहीं लग रही थी। ये मैं हूँ? इसने बेयकीनी से खुद को आईने में देखते हुए पूछा, तो पार्लर वाली खिलखिलाकर हंसी थी। जी हाँ मेरी हसीन परी, आप हैं। आपकी मासूम हुस्न को 4 चांद लग चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी आप दुल्हन बनकर इतनी हसीन लगेंगी। मैंने आज तक आपसे ज़्यादा हसीन दुल्हन नहीं देखी। वो इसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि दिलम ने हैरत से पलटकर इसे देखा था। वो खुद भी हैरान थी, तो वो उससे क्या कहती। मैं तो बिल्कुल पहचानी ही नहीं जा रही हूँ। इसने एक दफ़ा फिर से आईने पर निगाह डालते हुए पार्लर वाली से कहा था, जी आप बिल्कुल भी नहीं पहचानी जा रही। पहले वाले दिन और इस दुल्हन वाले दिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज तो आपके शोहर आपको देखकर पागल ही हो जाएंगे। पार्लर वाली इसका दुपट्टा सेट करते हुए इसे बातों में बहला रही थी, जबकि खुद दिलम भी मुस्कुराकर इसे देखने लगी। थोड़ी ही देर में
साइमा हाला आ गई थी। वो आकर इससे बातें करने लगी। बाहर तो पूरा घर ही लोगों से भरा हुआ था। वलीमे की दावत खूब अरूज पर थी। घर के अंदर औरतों का फंक्शन रखा गया था, जबकि घर के बाहर पीछे की तरफ एक मैदान था जहां पर मर्द हजरात को खाना खिलाया जा रहा था। बहुत ज्यादा धूमधाम न थी, लेकिन फिर भी पूरा मोहल्ला इसके वलीमे में शामिल था। वो दुल्हन बनी आसमान से उतरी हुई कोई हूर ही लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो दिलम आसमान का चांद लग रही है। हर वक्त इतनी सादा सी हालत में रहती हो, इसलिए दुल्हन का रूप तुम्हें निखार गया है, साइमा हाला इससे मिलते हुए कह रही थी, जबकि इनकी बहू भी काफी खूबसूरती से तैयार होकर आई थी। बारी बारी काफी सारे लोग आकर से देख रहे थे। दो तीन दफा तो खुद अबरक भी चक्कर लगा कर गया था। न जाने क्यों, कहने को तो काम का बहाना था, लेकिन इरादा इसे देखने का ही था। जब वो सिर्फ ड्रेस पहनकर खड़ी हुई थी, तब वो अंदर आते हुए कह कर गया था कि इस ड्रेस का गला काफी डीप है, पीछे से सेफ्टी पिन लगाकर इसे ऊपर करो। जिस पर पार्लर वाली ने फौरन इसकी बात मानकर ड्रेस को ठीक किया था। कसूर ड्रेस का नहीं था, वो ड्रेस बनी ही एक भरपूर लड़की के लिए थी, जबकि दिलम काफी दुबली पतली सी थी, जिसकी वजह से वो ड्रेस काफी लूज लग रही थी। लेकिन पार्लर वाली ने इसे बहुत अच्छे से सेट किया था। तो बट्टा सेट करने के बाद वो मुकम्मल तैयारी पर निगाह डालने ही लगी थी, जब अचानक अब्र कमरे में दाखिल हुआ। इसे यूं दाखिल होते देखकर एक लम्हे के लिए दिलम की सांसें रुक गई थी। तैयार हो गई मेरी बीवी? ये क्या कर दिया तुमने? इसने अंदर दाखिल होते दिलम के कंधे पर हाथ रखते इसे अपनी तरफ फेरा तो हैरान रह गया। हाँ, वो हैरत ही थी, इसका हुस्न देखकर नहीं, बल्कि इसकी तैयारी देखकर। हाँ, वो उसके हुस्न से इम्प्रेस नहीं लग रहा था, जिस तरह हर कोई इसकी तारीफें कर रहा था। इसकी तारीफ इसके सामने वाली की निगाहों में नहीं नजर आ रही थी। ये क्या बना दिया तुमने मेरी बीवी को? ये तो मेरी बीवी लग ही नहीं रही। इसने एक नजर पाली वाली को देखा, फिर दिलम पर निगाहें जमाई थी। ये इतना सब कुछ लगाने की क्या जरूरत थी? अच्छे हंसे प्यारे चेहरे का क्या हाल कर दिया है? मेरी बीवी के सारे नक्श इन सुर्खी पाउडर के बीच में छुपा दिए हैं। वो काफी मायूस लग रहा था सारी तैयारी पर। इसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। खुशी तो दूर, इसके चेहरे से किसी तरह की कोई रौनक भी नजर नहीं आ रही थी। क्या बोल रहे हो अब्रक बेटा? इतनी हसीन तो लग रही है, माशाल्लाह से कितना रूप आया है इस पर। चांद का टुकड़ा लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही दिलम है जो इतनी सादा रहती है। ये सादा ही अच्छी लगती है। क्या कर दिया है? अरे हल्का फुल्का सा काम रखना था ना। मैं तो पहले ही कहता था कि मेरी बीवी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं। अब चेहरा बिगाड़ दिया इसका। जाओ चेहरा धो कर आओ, कोई जरूरत नहीं है इतना मेकअप करने की। वो इसका हाथ थामे से वॉशरूम में जाने का इशारा करने लगा, जबकि पार्लर वाली तो अपनी मेहनत बर्बाद होने पर परेशानी से रास्ते में आ गई थी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने इन्हें तैयार कर दिया है, वो इतनी हसीन लग रही हैं। आपको नहीं लग रही? शायद आपने इस तरह से इन्हें कभी तैयार होते नहीं देखा है, लेकिन आप जरा देखें तो सही। इतनी हसीन शायद ही कहीं नजर आएगी आपको। वो इसे समझाते हुए बोल रही थी, जबकि सामने खड़ा आदमी तो कुछ समझना ही नहीं चाहता था। नहीं मतलब नहीं, मुझसे कुछ नहीं देखना, और न ही मैं अपनी बीवी को इस रूप में रखना है। इतनी खूबसूरत सी मेरी बीवी बेकार कर रखती। तुम्हें क्या लगता है मेरी बीवी इस नकली खूबसूरती की मोहताज है? नहीं, हरगिज नहीं। मेरी बीवी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो इन सब के बगैर भी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगेगी। उतारो ये सब कुछ, जाओ मुंह धोकर आओ। इसने एक दफा फिर से दिलम को देखते हुए कहा था, जो इसके रिएक्शन पर काफी मायूस थी। नहीं धोना मैंने मुंह। आपको क्या लगता है ये मजाक है? 3 घंटे से यहाँ बैठी मैं अपनी कमर इसलिए दुखा रही हूँ कि आप अंदर दाखिल होकर मेरा मुंह धुलवा देंगे। नहीं धोना मैंने मुंह। इतनी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, जिंदगी में कभी इतनी प्यारी नहीं लगी। पता नहीं आपके नजदीक खूबसूरती क्या है। नहीं रहना मुझे सादा सादा दुल्हन, ऐसी दुल्हन बनकर बैठूंगी मैं। वलीमा है मेरा। अजीब आदमी मत्थे लग गया है। खुद तो पता नहीं दुल्हन बनकर कैसे लगते हैं। मेरा रूप खराब कर रहे हैं अपनी बातों से। वो गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती इसे बेनुक्ता सुना गई थी, जबकि इतनी सारी बातें सुनने के बाद अबरक ने गहरा सांस लिया था। ओह अल्लाह, शुक्र है। मुझे लगा सच में मेरी बीवी कहीं गुम हो गई है। ये तुम ही हो। मुझे तो लगा आसमान से उतरी कोई हूर है जो गलती से रास्ता भटक कर जमीन पर आ गई है, लेकिन नहीं, ये कोई हूर थोड़ी है। ये तो मेरी प्यारी सी मासूम सी बीवी है, जो इस वक्त सच में किसी हूर से कम नहीं लग रही। लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूँ, इन सब के बगैर भी तुम अच्छी लगती हो, तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कर ही दिया है तो तारीफ रात को करूंगा। फर्ज के कान में हल्की सी सरगोशी करते हुए इसे खुश ही तो कर गया था, वरना अपनी इतनी तैयारी पर लानत भेजकर इसने सचमुच में मुंह धोने का फैसला कर लिया था। अगर इसका हार सिंगार इसके शोहर को ही पसंद नहीं था तो क्या फायदा था इतना सब कुछ करने का। मैं तो तैयार हो गई, लेकिन ये आपने क्या हालत बनाकर रखी हुई है। ट्राउजर के साथ कुर्ता पहना हुआ है आपने। सिर्फ मैं दुल्हन नहीं हूँ जनाब, आज के दिन आप भी दुल्हा है।
اور یہ آپ کس حالت میں ہیں؟ یہ حلیہ ہے آپ کا؟ وہ ذرا سا پیچھے ہٹتے ہوئے سے دیکھنے لگی۔ یار کام کروا رہا ہوں میں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے جو یہاں آ کر میرا ساتھ دے گا۔ محلے والے بھی بس نام کے محلے والے ہیں۔ وہ عارفہ خالہ فیصل فیصل کرتے نہیں تھکتی۔ کہاں ہے فیصل؟ کوئی نظر نہیں آیا صبح سے، خود ہی لگا ہوا ہوں۔ خیر اپنے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، میں کام نپٹا کر آتا ہوں 20 منٹ تک تمہیں لینے کے لیے۔ اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال دینا۔ میری بیوی کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہ پیچھے کو ہٹتا پیچھے کھڑی پارلر والی سے بولنے لگا جو ابھی پریشان تھی یہ سوچ کر کہ یہ خوبصورت سی دوشیزہ اس کے شوہر کو پسند نہیں آئی تھی۔ اس کی تو ساری محنت برباد ہو جاتی، لیکن شکر تھا کہ اس کی محنت برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ ویسے اس کا شوہر کافی سخت مزاج انسان تھا، اس نے اندازہ لگا لیا تھا، پر جیسا بھی تھا ان دونوں کی جوڑی بہت ہی پیاری لگتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد تلم کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جس انداز میں وہ تعریف کر کے گیا تھا اس کا خوش ہونا تو بنتا تھا۔ وہ اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اداسی کی تصویر تھی، بس اپنا میک اپ کروا رہی تھی، لیکن اب اس کے چہرے پر ایک الگ سی رونق تھی۔ خوشی اس کے ہر انداز سے پھوٹ رہی تھی۔ پارلر والی اسے پوری طرح سے تیار کرتے ہوئے اس کا چہرے پر گھونگھٹ سیٹ کر گئی تھی، کیونکہ اس کے شوہر کا حکم تھا، اور جہاں تک اس نے اندازہ لگایا تھا اس کا شوہر کافی سر پھرا انسان تھا، اور شاید ہی نہیں یقیناً وہ اپنی باتوں میں کوئی رد و بدل برداشت نہیں کر سکتا تھا، سو وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والی تھی جو اس کے شوہر کو برا لگے یا پھر خوبصورت سی شہزادی کا یہ دن خراب ہو۔ کیک ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش ماحول میں کاٹا گیا تھا۔ محفل حسین تھی، اس کی ساری دوستیں آئی ہوئی تھی، خوب رونق میلہ لگا ہوا تھا، ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا، جبکہ وہ ہر کسی کو اگنور کیے آبیہ کو لے کر ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اس کا تو بس ایک ہی کام تھا، بس آبیہ کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھنا، کیونکہ وہ اس ماحول میں کافی انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ اسے تو لگا تھا کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہوگی، لیکن یہاں تو اچھی خاصی بڑی پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم کنفرٹیبل نہیں ہو؟ باہر کی طرف چلے، وہاں تم اچھا فیل کرو گی، یہاں پر لوگ زیادہ ہیں نا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے ایک سائڈ پر لے کر آئی تھی، جبکہ آبیہ کی عجیب سی شکل دیکھ کر وہ کھل کر ہنسی تھی۔ یار اتنے سارے لوگ ہیں یہاں، مجھے تو لگا تھا بس تھوڑے سے لوگ ہوں گے، چھوٹی سی پارٹی ہوگی، لیکن یہاں پر تو کتنے سارے لوگ آ گئے ہیں نا۔ میں تو آج تک شادی پر بھی اتنے سارے لوگ نہیں دیکھے جتنے تمہاری پارٹی پر آ گئے ہیں، نہ جانے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، دکھنے میں تو بہت بڑے بڑے لوگ لگ رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی زندگی میں اس طرح کے لوگوں میں بیچ میں نہیں گئی ہوں۔ کوئی بات نہیں یار، تم پریشان مت ہو، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بالکل ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا۔ تم یہاں رکو میرے پاس الگ سے، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اب کوئی بھی ہوگا تو میں خود ہی مجھ سے مل جائے گا، اگر کسی کو بھی وش کرنا ہوا تو یہی میری دوست کے پاس آ کر مجھے وش کرے گا، میں نہیں جانے والی کسی کے بھی پاس۔ وہ مزے سے کہتی اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ خود کو اتنی اہمیت ملنے پر اب یہ بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس طرح کی پارٹی پر آ کر ہی عجیب محسوس کر رہی تھی، کیونکہ روشانے ہر کسی کو نظر انداز کر کے اس کے آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ حالانکہ برتھ ڈے اس کی تھی، اس کو سب سے ملنا تھا، سب کو ہینڈل کرنا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ خود بھی ایک امتحان میں پھنسی ہوئی تھی۔ نہیں، تم جاؤ سب سے ملو، ایسے اچھا نہیں لگتا تمہارا میرے پاس آ کر کھڑے رہنا، ویسے بھی یہ پارٹی تمہاری ہے اور سب لوگ تمہارے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ پیاسی سے سمجھانے لگی۔ اچھا پاپا میں چلی جاؤں گی، تم ریلیکس ہو جاؤ، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرنے والے انداز میں کہتی اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک طرف لے کر جانے لگی تھی، جب اچانک سلطان نے اسے رستے میں روک لیا۔ کبیر تقریباً آدھا گھنٹے سے اسی جگہ پر بیٹھا رہا تھا۔ اسی جگہ بیٹھا رہا تھا، بیٹھے بیٹھے اب وہ تھکنے لگا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کو ہوش کب تک آنا تھا، لیکن ایک بات تو طے تھی، آج اس سے بات کیے بغیر وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ لڑکی ہے، اگر مر گئی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ یار کیا مسئلہ ہے میرے دل کے ساتھ، لگتا ہے میں دل کا مریض بننے والا ہوں۔ وہ خورے کو سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، جب ایک دفعہ پھر سے خیال آ گیا۔ اس نے اس پر بہت زیادہ سختی کی تھی، لیکن اس کے مرنے کے خیال سے دل میں اٹھنے والی تکلیف کو وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ اپنے دل کو مسلا تھا۔ اتنی بے چینی، اتنی بے قراری کیوں تھی اسے؟ آخر اس لڑکی کے ساتھ کیا معاملات چل رہے تھے اس کے؟ وہ اس کے علاوہ اور کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ آج صبح اپنے اندر کی فیلنگز کو سمجھنے کے لیے اس نے دو مجرموں کو بہت برے طریقے سے مارا تھا، صرف اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ رحم ہے یا ہمدردی، یہ رحم اور ہمدردی صرف اس لڑکی کے لیے اس کے سینے میں اٹھ رہی ہیں یا باقی مجرموں کے لیے بھی اس کا دل نرم ہو رہا ہے، کیونکہ ہورے کے لیے کچھ تو ہو رہا تھا۔
जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन इन दोनों मुजरिमों को रुई की तरह धनक कर भी इसके किसी सवाल का जवाब न मिला था। टार्टल सेल से बाहर निकलकर इसने गहरी सांस ली थी और दिल ने कहा था, ये नरमी सिर्फ इस लड़की के लिए है जिसके साथ वह नरमी नहीं कर सकता। माना बहुत हसीन है, बल्कि बहुत ज्यादा हसीन है, लेकिन फिर भी असन कबीर का दिल इस तरह किसी के लिए बेकरार नहीं हो सकता। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी हसीन क्यों ना हो, वो सिर्फ एक मुजरम है। अगर इसके हुस्न पर ध्यान जा रहा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो मर्द हैं जो जानबूझकर इतनी हसीन लड़कियों को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। वो हमें इन लड़कियों के हुस्न से गुमराह कर सकें। लेकिन अरहान गुमराह क्यों नहीं हुआ? इसने भी तो इस लड़की का चेहरा देखा था। इसने कैसे इसे अपनी बहन बना लिया? वो भी तो मर्द था। इसके अंदर भी तो फीलिंग आ सकती थी इस लड़की के लिए, जिस तरह वो बेकरार हो गया था। वो मासूम सा चेहरा देखकर अरहान भी तो हो सकता था, लेकिन अरहान ने इस तरह से की किसी बात का इजहार ना किया था। हाँ, अरहान ने इसका चेहरा देखा था। इसने जैसे खुद को समझाया। दिल में एक दफा फिर से कोई सुई सी चुभी थी। अरहान ने इसका चेहरा क्यों देखा? वो तो पर्दा करती है ना, इसका चेहरा तो कोई गैर महरम नहीं देख सकता। अरहान ने इसका चेहरा क्यों देखा? वो अपनी सोचों में गुम तेजी से कदम इस लड़की के कमरे की तरफ बढ़ा रहा था। एक नामहरम होकर अरहान ने इसका चेहरा देख लिया। और मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? अगर अरहान ने इसका चेहरा देख लिया तो? अगर अरहान नामहरम है तो मैं कौन सा इसका महरम हूँ? इसने गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारते हुए एक झटके से दरवाजा खोला था। जहाँ पर बेड खाली था, बिस्तर पर थोड़ी शिकन नुमाया थी, जैसे यहाँ से किसी ने बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश की हो। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। वो लड़की कहाँ गई थी? वो तो बेहोश थी, चलने फिरने के काबिल भी नहीं थी, तो वो कहाँ जा सकती थी? वो परेशानी से कमरे से बाहर निकलने के लिए पलटा तो सामने खुला हुआ दरवाजा नजर आया था। वो तेजी से इस दरवाजे से निकलते हुए बाहर आया तो यहाँ कॉरिडोर में एक बड़ी सी राहदारी थी। सामने भी काफी सारे कमरे थे, लेकिन इस तरफ लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। यहाँ तक कि बरामदे में आधे से ज्यादा लाइट्स भी ऑफ थी। यकीनन इस तरफ कोई आता जाता नहीं होगा। इसने तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे, क्योंकि बिल्कुल सामने ही अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता नजर आ रहा था। नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती। वो भागने के काबिल तो हरगिज नहीं है। तो भाग कैसे गई वो परेशानी से बाहर की तरफ भागा था। वो लड़की भाग नहीं सकती थी। नहीं, वो इसे धोखा नहीं दे सकती थी। वो इसे जाने नहीं दे सकता था। वो इस काबिल ही नहीं थी कि भागी थी तो यकीनन किसी ने इसकी मदद की थी। बाहर निकलते हुए इसने अपने कदमों को रोका था। हर तरफ देखते हुए इसने अंदाजा लगाया कि यह रास्ता भी अस्पताल की दूसरी तरफ से निकलता है, यानी कि रास्ता भी इतना ही वीरान है जितना अस्पताल की वो कॉरिडोर। नहीं, वो इस लड़की को भागने नहीं दे सकता था। वो इसे नहीं जाने दे सकता था। हाँ, वो नहीं भाग सकती थी। वो भाग सकती ही नहीं थी। इसको इतनी तकलीफ थी। इसके पैरों पर डंडे मारे गए थे, इसकी टांगों पर तशद्दुद किया गया था। वो अपने पैरों पर उठ नहीं सकती थी, तो भाग कैसे सकती थी? वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच था, हर तरफ निगाहें घुमा रहा था, लेकिन कोई सिरा समझ में नहीं आ रहा था। रोशाने बेटा, आपकी मामा कब से आपको ढूंढ रही हैं। वहाँ इनकी सहेलियाँ कब से आपको विश करने के लिए इंतजार कर रही हैं। आप जाओ, इनसे हेलो हाय करके आओ। सुल्तान अचानक इसके रास्ते में आते हुए बोला तो वो मुंह बना गई थी। बाबा, मैं नहीं जा रही। मेरा फ्रेंड अकेलापन महसूस कर रही है। इसे इस तरह के पार्टीज की आदत नहीं है। आपने भी तो ऐसे ही इतने सारे लोगों को बुला लिया। मैंने इसे अपने लिए यहाँ पर रखा था। फजूल की चीज़ों में उलझ कर रह गई है आपकी ये पार्टी। मेरे बगैर कर लीजिए। आप ये पार्टी मेरे बगैर कर लीजिए। मैं आविया को लेकर रूम में जा रही हूँ। वो इसे देखते हुए बोली तो आविया ने नफी में सर हिलाया था। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ तुम्हारी मम्मी के फ्रेंड्स कब से बैठे हैं, शायद तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। इन लोगों को तुम्हें विश करना होगा। वो तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। इस तरह अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ, इनसे मिल कर आओ। मैं यहीं रुकती हूँ तुम्हारे लिए। आविया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि रोशाने हर किसी को नजरअंदाज कर रही थी। तुम्हारी दोस्त बिल्कुल ठीक कह रही है रोशाने बेटा। जाओ अपनी मम्मा की फ्रेंड से मिल कर आओ। वो कब से मुंतजर हैं तुम्हारी फ्रेंड को। तब तक मैं कंपनी देता हूँ। ये बिल्कुल बोर नहीं होगी, बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं करेगी। वो इसे देखते हुए जैसे गारंटी दे रहा था, जबकि रोशाने ने हल्का सा मुंह बनाया था, फिर हाँ में सर हिला गई। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। इसे अकेला मत छोड़िएगा। वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रही यहाँ पर। रोशाने ने कहते हुए वहां से चली गई थी, जबकि सुल्तान हाँ में सर हिलाता मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा, लेकिन इसकी मुस्कुराहट पर आविया मुस्कुराई नहीं थी। मैं वहां जाकर बैठती हूँ, रोशाने अपनी आंटी से मिलकर आ जाएगी। वो कहते हुए वहीं थोड़े फासले पर परे एक टेबल की तरफ जाने लगी थी, जब अचानक ही सुल्तान ने इसका हाथ थाम लिया।
तुम मुझे इग्नोर कर रही हो या भाग रही हो मुझसे? इसका सवाल अचानक आया था, जबकि आविया पलटकर इसे देखती एक झटके से अपना हाथ छुड़ा गई थी। मैं आपको इग्नोर क्यों करूंगी अंकल? और मैं आपसे क्यों भागूंगी? आप मेरी फ्रेंड के बाबा हैं, मेरे लिए काबिले एहतराम हैं। हाँ हाँ, मैं काबिले एहतराम हूँ, भला भला। वो सारी बातें बाद में करेंगे। इस रात तुम अचानक से आकर मुझसे टकराई तो मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाया, वो सब कुछ काफी अचानक से हुआ था मेरे लिए भी और यकीनन तुम्हारे लिए भी। हाँ हाँ, मैं काबिले एहतराम हूँ, भला भला। वो सारी बातें बाद में करेंगे। इस रात तुम अचानक से आकर मुझसे टकराई तो मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पाया, वो सब कुछ काफी अचानक से हुआ था मेरे लिए और यकीनन तुम्हारे लिए भी। इस दिन तुम डर गई होगी या तुमने मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच लिया होगा, तो सोचा तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं। कौन सी गलतफहमी? कब की बात कर रहे हैं आप? ओह, शायद इस रात की। इट्स ओके, मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। यकीनन वो बाई मिस्टेक हुआ था। वह इस रात को याद करते हुए बोली तो सुल्तान सर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, बाय मिस्टेक, लेकिन कुछ गलतियाँ बहुत दिलकश होती हैं, बहुत हसीन होती हैं। क्या मतलब? इसके अचानक कहने पर वो हैरत से इसे देखने लगी थी। अब इसकी इस फजूल सी बात का क्या मतलब था? वो जानती थी इस रात वाली हरकत इसने जानबूझकर की थी, लेकिन फिर भी इसने रोशाने की खातिर इस वाक़ये को भुलाने का फैसला किया था। इसका इरादा यही था कि वो इस बारे में ना तो सोचेगी और ना ही कभी बात करेगी, लेकिन वो खुद ही इस बारे में बात कर रहा था और इसे इस टॉपिक पर बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, वो इस रात की हरकत गैर हाँ, वो इस रात की हरकत काफ़ी गैर मुनासिब थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना जाने मुझे क्या हुआ था। खैर, जो भी हुआ भूल जाओ। वो इसका चेहरा देखते हुए बोला था। जब ध्यान इसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों पर गया था, वो खुले बालों में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन लट बार बार चेहरे की तरफ उड़कर आ रही थी, जो इसे डिस्टर्ब भी कर रही थी। ना जाने सुल्तान के दिमाग में क्या समाई कि बेसाख्ता ही इसका हाथ उठते हुए इसके चेहरे के करीब आया था। एक उंगली से इंतहाई एहतियात से इसने इसके बालों को पीछे करते हुए बाकी के बालों में भराया था और फिर बेहद नरमी से इसके कान पर अपनी उंगली के पोर फेरते हुए अपनी हथेली की मुट्ठी बनाए नरमी से इसके चेहरे को छू गया। इसकी ये हरकत इतनी बेसाख्ता थी कि वो खुद को कुछ समझा नहीं पाया था। सामने खड़ा वजूद भी सख्ते में आ गया था और इसका हाथ अब तक इसके चेहरे से हटा नहीं था, बल्कि इसके गालों को छूता हाथ अब इसके लबों तक आ चुका था। इसके अंगूठे ने बड़ी बेबाकी से इसके लबों को छुआ ही था कि वह अगले ही लम्हे इसका हाथ दूर छटक कर थोड़े फासले पर हुई थी। इससे पहले कि वो इसे कुछ भी कहती, रोशाने ने सुल्तान के कंधे पर हाथ रख दिया था। आ गई मैं बाबा, मिल ली मामा की सारी फ्रेंड से। अब मैं आविया को लेकर रूम में जा रही हूँ। वैसे भी आपने इतने बूढ़े बूढ़े लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है, मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं आविया के साथ अपनी सारी फ्रेंड्स को भी लेकर जा रही हूँ, इसने कहते हुए आविया का हाथ थामा था और अगले ही लम्हे अपनी क्लास फेलोज की तरफ चली गई थी, जिनके साथ वो आप अपने रूम में जाने का इरादा रखती थी। जबकि सुल्तान अब तक अपने हाथ को देख रहा था। ये क्या हुआ था इसे? वो समझ नहीं पा रहा था। ये दूसरी दफा था। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या था कि इसके सामने वो बेखुद सा हो जाता था? कुछ तो ऐसा था जो इसके लिए हैरान कुन था। वो काफ़ी देर अपने हाथ को देखता रहा था, फिर जैसे होश की दुनिया में वापस आते हुए इसने इस रास्ते की तरफ देखा था जहाँ से थोड़ी देर पहले आविया गुजर कर गई थी। अब वहाँ कोई भी नहीं था। हर तरफ शोर था, लेकिन इसके कानों में तो सिर्फ जैसे आविया की ही आवाज़ आ रही थी। ये क्या हो रहा था इसको? वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बहुत छोटी सी लड़की थी, रोशाने की हम उम्र, मासूम सी लड़की जो जिंदगी के उतार चढ़ाव को समझती भी नहीं थी। वो इसके लिए ऐसा नहीं सोच सकता था। वो क्यों इस लड़की की तरफ मुतवज्जो हो रहा था? वो इसके सामने बच्ची थी, इसकी बेटी की सहेली थी, बल्कि इसकी बेटी से भी 8 दिन छोटी थी। वो क्यों खुद को संभाल नहीं पा रहा था? क्यों इसका दिल इससे बगावत पर उतर आया था? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता था। वो किन चक्रों में पड़ चुका था। ये उम्र नहीं थी आशिकी मशूकी वाली। वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा था। इसने अपने दिल को लगाम में डालनी थी। हाँ, जब ये सब कुछ करने की उम्र थी
तब हर चीज़ को आंख में झोंक कर इसने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, तो अब कैसे वो इन सब सोचों को पालने लगा था। वो अपनी ही सोचों में डूबा उलझा हुआ था जब अचानक ही किसी हाथ ने इसके कंधे पर हाथ रखा। पलट कर देखा तो जरनीश खड़ी थी। आप यहाँ हैं? वहाँ कब से मेरी फ्रेंड्स आपके बारे में पूछ रही हैं। रोशानी को भी भेज दिया, खुद भी आ जाते, वो मिली थी ना आपसे आज। मेरी कुछ दोस्त हैं, वो काफ़ी अरसे से आपसे मिलना चाहती हैं और एक फ्रेंड को तो आपकी किसी सिलसिले में मदद भी चाहिए। मैंने इससे वादा किया है कि आप इसकी मदद करेंगे, आप जल्दी से आ जाइए। वो इसका बाजू में हाथ डालते हुए इसे अपने साथ घसीटने लगी, तो सुल्तान भी खामोशी से इसके साथ चल दिया था, जबकि इसका दिल कहीं और ही था। वो लड़की कहाँ है? वो गुस्से से वापस अंदर आते हुए वहाँ मौजूद रिसेप्शन से पूछने लगा था, जो खुद भी इसका सवाल सुनकर जरा हैरान हुई थी। जी सर, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप? पेशेंट तो अंदर बेहोश पड़ी थी ना? वहाँ मौजूद नर्स ने परेशानी से कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता, वो लड़की यहाँ से भाग निकली है। सीसीटीवी कैमरा चेक करवाओ मुझे, वो गुस्से से कहता सामने पड़ा लैपटॉप अपनी तरफ कर चुका था, जबकि खुद भी तेजी से उंगलियां चलाते हुए सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगा, लेकिन किसी भी कैमरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। इसने गुस्से से सामने मौजूद लड़की की तरफ देखा था। सीसीटीवी कैमरे ऑफ क्यों हैं? वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए ऑफ हुए हैं, क्यों? वो गुस्से से दहाड़ा था। मुझे क्या पता सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वो तो अभी थोड़ी देर पहले नर्स रेहाना यहाँ आई थी, उन्होंने बस चेक किया तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरा ऑफ है। अभी मैं ऑन करके आई हूँ। सीसीटीवी कैमरा सिर्फ 20 या 25 मिनट के लिए ऑफ हुए हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? क्या मतलब है? वो लड़की भाग गई है इन 20 मिनटों में। वो गुस्से से पूरे काउंटर को हिलाकर रख चुका था, जबकि नर्स इसके गुस्से से खौफजदा होती दीवार से जा लगी थी। कैमरा किसने ऑफ करवाया? नर्स रेहाना को बुलाओ। वो गुस्से से काउंटर पर हाथ मारते हुए दहाड़ा था, जबकि नर्स अगले ही लम्हे वहां से भागकर गायब हुई थी। कहाँ है वो लड़की? तुमने भगाया है ना इसे? तुम्हारी हमदर्दियां देखकर मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हें इस लड़की के साथ कोई ना कोई मतलब जरूर है। बताओ मुझे, कहाँ है वो लड़की? रेहाना अंदर दाखिल हुई थी कि वो एक झटके में इसका बाजू पकड़ता इसे पूरी शिद्दत से कुर्सी पर पटक चुका था। इसका अंदाज इंतहाई होनहार था। नर्स एक झटके में अधमोही हो गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कैसे पता वो लड़की कहाँ गई? भाग गई होगी। चटक, वो न जाने क्या क्या बोलने वाली थी जब कबीर का जोरदार थप्पड़ इसे कुर्सी समेत जमीन बोस कर गया था। इसने ना तो उम्र का लिहाज किया था और ना ही इसके ओहदे का। इस अस्पताल में नर्स बनने से 1.5 साल पहले शबाना नाम के धंधे वाली के यहाँ काम करती थी तुम। यहाँ इस अस्पताल में तो तुम्हारी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तुम्हारा तल्लक गलत किस्म के लोगों से है। शक सबको है, लेकिन तुम्हारा काम अच्छा देखते हुए कोई कुछ नहीं बोलता। इस अस्पताल से 3-4 महीने पहले भी एक लड़की गायब हुई है, जिसकी कोई रिपोर्ट दर्ज न होने की वजह से कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन बाद में इस लड़की को सड़कों पर धंधा करते हुए देखा गया है। मेरी जाती मालूमात से पता चला है कि लड़की को शबाना बाई के कोटे पर 3 महीने पहले तुम लेकर गई थी। अब तुम खुद तफसील बताओगी या फिर मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? वो इसकी बालों को मुट्ठियों में दबोचते हुए दहाड़ रहा था, जबकि वो हाथ जोड़े तेज तेज जो मुंह में आए बोलती चली जा रही थी। ये क्या लेकर आए हो? हड्डियों का ढांचा, और ये तो जख्मी है, इसे ठीक करने में महीना लग जाएगा। मैं नहीं खरीद रही इसको, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख दूंगी और बस। मुझे तो ये मेरे किसी काम की नहीं लगती और इतनी खूबसूरत भी नहीं है जितनी रेहाना फ़ोन पर बता रही थी। एक बड़ी उम्र की औरत शबाना तख्ते पर बैठी हुई थी, जबकि इसके सामने ही हुरे का बेजान वजूद पड़ा था। इसे बेहोश किया गया था और बेहोश करने के बाद इसे इस जगह पर लाया गया था जहाँ सिर्फ गजालत थी। देखो शबाना बेगम, यही लड़की है जिसकी वो बात कर रही थी। अनटच है और आगे पीछे पूछने वाला भी कोई नहीं है। पुलिस के चक्कर में यहाँ तक लेकर आए हैं। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इसने मुझे 5 लाख की डिमांड करने को कहा है, जो मैंने तुम्हारे कान में डाल दी है। अरे 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है। वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक ही कराची का बड़ा बदमाश रब्त खान अंदर दाखिल हुआ था।
वक्त खोटी मत कर शबाना, मैंने तुझे कहा था मुझे अनटच लड़की चाहिए। तूने सैकड़ों के इस्तेमाल शुदा लड़की मेरे गले में डाल दी। वंदर दाखिल होता पीछे आई लड़की को जैसे इसके हवाले कर रहा था। हाय रब्त खान, यकीन करें ये लड़की खुद ही कह रही थी कि इसे किसी ने नहीं छुआ है। तुम फिक्र मत करो, अब जो भी लड़की मैं तुम्हें दूंगी वो अनटच ही होगी। वह इसे बोलते हुए वहां किसी और को इशारा करने लगी थी जब रब्त खान का सारा ध्यान जमीन पर इस बेजान वजूद पर गया था। ये क्या मुर्दा है? इसने जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की की तरफ इशारा किया था। नहीं, अभी जिंदा है लेकिन मौत के करीब ही है। बेचने के लिए लाई है, कह रही है अनटच है, लेकिन अभी इसे इलाज की जरूरत है और मेरा इरादा भी नहीं इसे खरीदने का। तेरा इरादा नहीं लेकिन मेरा इरादा है, लगाओ इसकी कीमत। वो इसके पास आकर रुकता, इसका चेहरा देख रहा था। अरे रब्त खान, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं, इसमें इतनी जान नहीं कि तुम जैसे को बर्दाश्त कर सके। पहले ही अधमरी है, पूरी मर जाएगी। मुझे परवाह नहीं, मुझे ये चाहिए, हर कीमत पर तुम्हारे मुंह से निकली कीमत अदा करूंगा। वो इसके पास बैठता, इसके चेहरे को आहिस्ता से उंगलियों के पोरों से छू रहा था। वैसे तो यह हास पीस है रब्त खान, मेरा इरादा नहीं था बेचने का। इतनी हसीन है, आगे बहुत काम आने वाली थी मेरी, लेकिन तुम्हारी नजर इस पर पड़ गई तो क्या याद करोगे। मैंने तुमसे 3 लाख लिए थे मगर इसने तुम्हें मायूस कर दिया। लेकिन ये मायूस नहीं करेगी क्योंकि ये ओरिजिनल माल है। 1 महीने के लिए ले जाओ इसे, सिर्फ 10 लाख में। वो फैल कर बोली थी। अगर वो बहस मुहासे पर आया तो 5 लाख तक मान ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह वो इस लड़की को देख रहा था इसकी आंखों से हवस साफ टपक रही थी। यकीनन इसके लिए एक बेबस औरत को मजीद बेबस करना ही राहत का सामान था। दिए 10 लाख, क्या याद करोगी? इसकी खातिर अगर तुम करोड़ों मांगती तो भी इनकार ना करता। ये लड़की मेरी है। वो एक ही बार में मान गया तो सामने खड़ी शबाना ने मुंह पर हाथ रख लिया था। ये इससे क्या हो गया था? मतलब अगर वो करोड़ों मांगती तो वो भी मतलब अगर वो करोड़ों मांगती तो भी वो दे देता। ये क्या कर दिया था इसने? हाथ में आई रकम मिलने से पहले ही हाथ से निकल गई थी। है 10 लाख भी कम नहीं थे। और रेहाना को कह दूंगी, लड़की अनटच नहीं थी और ना ही किसी ग्राहक को पसंद आई थी। बस बेचने की हद तक ठीक है, 1 आधा लाख इसे थमाकर बात खत्म कर सकती थी वो। ठीक है, लड़की तुम्हारी, तुम रकम मेरे हवाले कर दो, वो आराम से बोली थी जब अचानक ही कोई गुस्से से फिरा अंदर दाखिल हुआ था। किसी को इस तरह अचानक आता देखकर खुद शबाना की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इसने पुलिस की वर्दी पहन कर रखी थी। सिंध पहुंचकर वह सबसे पहले हुरे के स्कूल और कॉलेजेस में गया था। वहां इसने हुरे की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन हर कोई इसे पहचानने से इनकार कर रहा था। वजह वो समझ नहीं पा रहा था। ये इसका यकीन था कि हुरे ने झूठ नहीं बोला, इसका तल्लक यहीं से है और वो इन्हीं लोगों की बेटी है जिसकी कब्र वो बना चुके हैं। वो हर चीज पता करने वाला था और किसी को हुरे पर यकीन हो ना हो, लेकिन अरहान इस पर यकीन कर चुका था और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब ये यकीन टूट नहीं सकता था। इसने हर कीमत पर हुरे को बेगुनाह साबित करना था, इसके लिए इसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन अब वो इस रास्ते से पीछे हटने को तैयार नहीं था। आप बार बार यहाँ क्यों आ रहे हैं? हम आपको बता चुके हैं, इस लड़की का हमारे स्कूल से कोई तल्लक नहीं है। कब समझेंगे आप इस बात को? हर दूसरे तीसरे दिन आप तस्वीर लेकर यहाँ आ जाते हैं। हम पहले भी पुलिस के साथ जितना कोऑपरेट कर सकते थे कर चुके हैं। हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमें इन सब मामलों में मत घसीटें। हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है आपके रोज रोज यहाँ आने से। प्रिंसिपल गुस्से से इसे घूरते हुए बोला। ये स्कूल नर्सरी से लेकर 12वीं जमात के तलबात के लिए था। ये लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल था जहाँ पर सिर्फ बच्चियों को ही तालीम मुहैया की जाती थी। पूरे के जो कागजात हॉस्टल से मिले थे इसमें इसी स्कूल की मालूमात थी। यहाँ तक कि तकरीबन 4 महीने पहले हुरे इसी स्कूल से अपना FSC कंप्लीट करके निकली थी। इसका मतलब यही था कि ये आदमी झूठा है। सिर्फ अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए वो एक मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह कर रहा था। देखें सर, मेरी बात सुने और प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि ये बच्ची इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यूँ कहें कि मौत के मुंह में पहुंची हुई है ये लड़की। इस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है इस शक की बिना पर कि इस लड़की का तल्लक किसी दहशतगर्द गिरोह से है। इसकी कोई सच्चाई साबित नहीं हो पा रही, कोई इसके हक में बोल नहीं रहा। हर कोई इसके खिलाफ हो चुका है। यहाँ तक कि जिस स्कूल में, जिस इदारे में वो इतने साल पढ़ी है
جہاں اس نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں شاید اس نے خواب دیکھنا سیکھے ہیں، وہاں کے لوگ اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس کے ماں باپ اس کی قبر بنا چکے ہیں۔ آپ خود کو اس کی جگہ رکھ کر سوچئے، کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں یہ بات کہ آپ کے والدین آپ کے جیتے جی آپ کی قبر کھود دیں؟ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک بچی جس کے والدین نے اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اس کا ہم کیسے ساتھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جناب، ہمیں ہمدردی ہے اس بچی سے، لیکن ہماری مجبوریوں کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم 45 سال سے یہ اسکول چلا رہے ہیں، صرف ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے اسکول کی بنیادیں ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ یہاں صرف ایک بچی کے فیوچر کا سوال نہیں ہے، یہاں ہزاروں اور بچے ہیں جن کے آنے والے کل تباہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے اسکول کا نام بھی ہم کسی طرح کی دہشت گردی میں نہیں آنے دے سکتے۔ ہم بھی مجبور ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں بار بار ان سب چیزوں میں مت الجھائیں۔ خدا کے لیے ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ دوبارہ یہاں تشریف مت لائیے گا۔ پرنسپل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو ارحان غصے سے مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ آخر یہ لوگ کیوں سمجھ نہیں رہے تھے؟ کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں ان کے اسکول کا نام بھلا کیسے آ سکتا تھا؟ یہ اپنی نام نہاد ریپوٹیشن بچانے کے لیے ہورے کی زندگی تباہ کرنے کو تیار تھے، لیکن اس کی آئیڈینٹی ویریفائی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ یہاں پر نہیں آؤں گا، لیکن کل صبح اسمبلی میں آپ اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ درس ضرور دے دیجئے گا کہ اگر آنے والے وقت میں ان پر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو کم سے کم آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ یقیناً اپنے بچوں کو سچائی کا ساتھ دینا تو سکھاتے ہی ہوں گے نا آپ، انہیں بتا دیجئے گا کہ سچائی کا ساتھ دینے سے ہماری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ وہ غصے سے کہتا اپنی جگہ سے اٹھتا باہر نکل گیا تھا۔ عجیب لوگ تھے، ان کی بے حسی عروج پر تھی، یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے کچھ بھی۔ انہیں صرف اور صرف خود سے مطلب تھا، یہ دنیا صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے جیتی تھی۔ اس نے آج تک سنا تھا، لیکن آج وہ اس بات پر مہر لگا چکا تھا۔ وہاں سے نکل کر وہ سیدھا قبرستان جا رہا تھا۔